وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کے ضلع صحبتپور کے دورے پر چلے گئے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم صحبتپور میں سیلاب زدگان کی بحالی کے کاموں کا جائزہ بھی لیں گے۔ ضلع صحبتپور کے دورے کے دوران سیلاب زدگان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اداروں کی جانب سے وزیر اعظم کو بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی جائے گی۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ میں مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ولیعت کی درخواست دائر کر دی۔ کیس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی۔ انہوں نے عدالت میں نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ولیعت کی درخواست دائر کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عین وقت پر نئی حلقہ بندیوں کے معاملے پر قانونی مشاورت کر رہی ہے۔ عین وقت پر نئی حلقہ بندیاں ٹیکنیکل ہیں اور اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہی ہے۔ جیسے ہی کوئی اچھا رسپانس آئے گا MQM کو بتا دیا جائے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ پاکستان نیشنل سیکورٹی کے بیانات سے واقف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف دفاع کرنا پاکستان کا حق ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستانی عوام نے دہشت گرد حملوں سے بہت نقصان اٹھایا۔ افغانستان دہشت گردی کا لانچنگ پیڈ نہ بنے، یقینی بنایا جائے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ترجمان وزیر اعلیٰ مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے 9 ماہ کے خرچے عمران خان دور کے 3.5 سال سے زائد ہیں۔ ٹویٹر پر جاری پیغام میں ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ امپورٹڈ ٹولے نے پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ بنائی۔ ہر روز وزیر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ہر روز عوام پر کبھی مہنگائی تو کبھی پابندیوں کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ اس نااہل ٹولے کو اب شرم کر کے ہماری جان چھوڑ دینی چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ الیکشن کا پیغام دے دیا گیا ہے، اب شیڈول طے کرنا باقی ہے۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں شیخ رشید نے کہا کہ قوم الیکشن کی تیاری کرے، الیکشن ہی سیاسی معاشی استحکام لائے گا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 8 بجے دکانیں بند کرنے کے معاملے پر حکومت کو صوبوں اور تاجر تنظیموں کا اعتماد نہیں لینا چاہیے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2.5 لاکھ ٹن مزید چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ECC کا اجلاس ہوا، جس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ ECC اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق پہلے 1 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے، جس کے بعد مزید چینی برآمد کی منظوری دی گئی ہے۔ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس کے 5126 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 22 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا مثبت کیسز کی شرح 0.43% رہی، جبکہ 2 مریض موت کے منہ میں بھی چلے گئے۔ NIH کی رپورٹ کے مطابق ملک میں ابھی بھی 14 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند اور حد نگاہ انتہائی کم ہو جانے کے بعد اہم شاہراہوں سمیت موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر ویز نے بتایا کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11، موٹر وے M2 اور موٹر وے M5 کو بھی شدید دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیور حضرات تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ کراچی ٹیسٹ کے تیسرے دن پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 449 رنز بنائے تھے۔ امام الحق اور سعود شکیل نے 3 وکٹ کے نقصان پر 154 رن سے آج دن کے کھیل کا آغاز کیا۔ گزشتہ روز عبداللہ شفیق 19، شان مسعود 20 اور بابر اعظم 24 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے۔
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर के दौरे पर चले गए हैं। दौरे के दौरान वजीर आजम सोहबतपुर में सैलाब ज़दगान की बहाली के कामों का जायजा भी लेंगे। वफाकी वजीर तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में बताया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर के दौरान दौरे में सैलाब ज़दगान से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि इदारों की जानिब से वजीर आजम को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। NDM में हुकाम तक की बहाली से मुतालिक सूरत हाल पर वजीर आजम और दीगर अराकीन को तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी वजीर आजम को सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दाम का बताया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन से मुलाकातें भी करेंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर के दौरे पर चले गए। दौरे के दौरान वजीर आजम सोहबतपुर में सैलाब ज़दगान की बहाली के कामों का जायजा भी लेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर के दौरे के दौरान सैलाब ज़दगान से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि इदारों की जानिब से वजीर आजम को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। NDA में हुकाम अब तक की बहाली के मुतालिक सूरत हाल पर वजीर आजम और दीगर अराकीन को तफसीलात से आगाह करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी वजीर आजम को सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दाम का बताया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन से मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क भर में मदारिस इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। मदारिस में तलबा को मुफ्त तालीम, रहाइश और खुराक फराहम की जाती है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस नेक समाजी खिदमत में मदारिस का हाथ बटाए। को अव्वलीन कौमी एजेंट आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क भर के मदारिस इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। मदारिस में तलबा को मुफ्त तालीम, रिहाइश और खुराक फराहम की जाती है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस नेक समाजी खिदमत में मदारिस का हाथ बटाए। मदारिस मुआशरे में इस्लामी शऊर और तालीमात को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। खुशी और इज्जत का मकाम है, बल्कि आज बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात का मौका मिला। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की बदौलत मैं आपकी आमद का तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमारी एक नशस्त पहले भी हो चुकी है और उसमें बाज़ मामलात ज़ेर बहस आए थे। उसके बाद तय पाया था कि एक मुतल्लिका जो वजारतें हैं और वज़राए कराम और मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनसे एक बामी एक तबादला ख्याल होना चाहिए। और मेरा ख्याल में वो एक बाकायदा एक बैठक हुई थी। और फिर गुज़िश्ता बरस 18 नवंबर को मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब अल्लाह ताला के प्यारे हो गए। तो हज़रत मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब की जो खिदमात हैं दीन इस्लाम के लिए, वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलम इस्लाम उसका मोतरफ़ है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज जो मौजू है उस हवाले से कुछ हक़ाइक़ का जिक्र कर देना मुनासिब होगा कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50 लाख तालिब इल्म मदारिस में ज़ेर तालीम है। इनमें तकरीबन निस्फ तादाद बच्चियों की है। हज़ारों की तादाद में
यतीम और लावारिस बच्चे और बच्चियां इन मदारस में तालीम के और इस्लामी तालीमात के जेवर से आरास्ता पैरास्ता हो रही हैं। इन बच्चों के लिए रिहाइश, खुराक, किताबें सब मुफ्त हैं, कोई फीस वसूल नहीं की जाती। इन मदारस को पाकिस्तानी और इस्लामी NGOs का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी कहा जा सकता है, जो माशरे के अंदर इस्लामी शऊर और तालीमात को फ़रोग़ देने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। माशरे में हमारे बच्चों और बच्चियों को नाज़िला कुरान पाक पढ़ाने में मदारस और मुअल्लिमीन का बहुत अहम किरदार है और हिफ्ज़ कुरान करीम की मेरी ये ख्वाहिश है और कोशिश है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए हुनरमंद अफराद को शिराकतदार बनाते रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र हैं, जिन्होंने आलमी सतह पर मुख्तलिफ शोबों में अपना मुकाम बनाया। उन्होंने कहा कि मेरी हदायत पर वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल चैंपियंस ऑफ रिफॉर्म्स नेटवर्क का आगाज कर रहे हैं। यह नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा जिसमें मुल्क के लिए माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए बेहतरीन टैलेंट को बरोए कार लाया जाएगा। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए हुनरमंद अफराद को शिराकतदार बना रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क का फख्र है, जिन्होंने आलमी सतह पर मुख्तलिफ शोबों में अपना मुकाम बनाया। इन्होंने कहा कि मेरी हिदायत पर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल चैंपियंस ऑफ रिफॉर्म्स नेटवर्क का आगाज कर रहे हैं। ये नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा जिसमें मुल्क के लिए माहिरीन की खिदमत ली जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बड़े चैलेंज से निपटने के लिए बेहतरीन टैलेंट को बरोए कार लाया जाएगा। नूरी आबाद पावर प्रोजेक्ट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत में नूरी आबाद पावर प्रोजेक्ट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की, जिसके दौरान वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह पेश हुए। उन्होंने अदालत में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं रहा। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रिफॉर्म से बरियत की जाए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक नाजिम कराची मुस्तफा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी ने आज जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया। PSP के जराये के मुताबिक जनरल वर्कर्स इजलास आज शाम 7 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। जराये PSP का कहना है कि इजलास में MQM के एहतजाज में शिरकत और इसमें शमूलियत के हवाले से कारकुनों से राय ली जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज MQM पाकिस्तान का वफ्द पाक सरजमीन पार्टी के मरकज पाकिस्तान हाउस आया था। वफ्द ने सरबराह PSP मुस्तफा कमाल को 9 जनवरी के एहतजाज में शिरकत और पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि साबिक नाजिम कराची मुस्तफा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी ने आज जनरल वर्कर इजलास तलब कर लिया। PSP के जराये के मुताबिक जनरल वर्कर्स इजलास आज शाम 7 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। जराये PSP का कहना है कि इजलास में MQM के एहतजाज में शिरकत और इसमें शमूलियत के हवाले से कारकुनों से राय ली जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज MQM पाकिस्तान का वफ्द पाक सरजमीन पार्टी के मरकज पाकिस्तान हाउस आया था। वफ्द ने सरबराह PSP मुस्तफा कमाल को 9 जनवरी के एहतजाज में शिरकत और पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं जिन्हें दूर किया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना था कि कुछ चीजें हुकूमत, कुछ इलेक्शन कमीशन और कुछ अदालत के हाथ में है। उनका कहना है कि ऐन वक्त पर नई हल्का बंदी टेक्निकल मामला है।
जिसे देख रहे हैं। सिंध के वजीर इत्तलात का मजीद कहना है कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है। जैसे ही कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा MQM को बता दिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन का यह भी कहना है कि आईन और कानून के दायरे में रहते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इस हवाले से फैसले करेंगे। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं जिन्हें दूर किया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना है कि कुछ चीज़ें हुकूमत, कुछ इलेक्शन कमीशन और कुछ अदालत के हाथ में हैं। उनका कहना है कि ऐन वक्त पर नई हल्का बंदियां टेक्निकल मामला है जिसे देख रहे हैं। सिंध के वजीर इत्तलात का मजीद कहना है कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है। जैसे ही कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा MQM को बता दिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन का यह भी कहना है कि आईन और कानून के दायरे में रहते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इस हवाले से फैसले करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि तर्जुमान वजीर आला मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कबीना बनाई। हर रोज वजीर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। उनके 9 माह के खर्चे इमरान खान दौर के 3.5 साल से जायद हैं, लेकिन ये अपने खर्चे कम करने की बजाय फिर गुर्बत में पिसी कौम को कुर्बानी मांग रहे हैं। इस नाहल टोले ने अब शर्म करनी चाहिए और हमारी जान छोड़ दे, लेकिन ये अपने खर्चे कम करने की बजाय फिर गरीब में पिसी कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा का मजीद कहना था कि हर रोज अवाम पर कभी महंगाई तो कभी पाबंदियों के ऐलानात हो रहे हैं। इस नाअहल टोले को अब शर्म करके हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया, अब शेड्यूल तय करना बाकी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए सिलसिलावार ट्वीट्स में शेख रशीद ने कहा कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इलेक्शन ही सियासी मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा और वजीर दाखिला अफगानिस्तान के मामले पर सोच समझ के बयान दें। बिलावल भुट्टो सैलाब ज़दगान के बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाने की बजाय इनकी मदद करें। शेख रशीद का कहना है कि 8 बजे दुकानें बंद करने के मामले पर हुकूमत को सूबों और ताजिक तंजीमों को एतमाद में लेना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि हुकूमत मुआशी न सियासी इस्तेहकाम ला सकी और न अपने हल्कों में जाने के काबिल है। गैर मकबूल फैसलों से सारा नुकसान नून लीग और इसके तहादियों को हुआ। उनका यह भी कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज और ज़र मुबादला के ज़खायर आधे हो गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम हो जाने के बाद अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना, जबकि मोटरवे M5 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवेज ने बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, मोटरवे M2 और मोटरवे M5 को भी शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। तर्जुमान ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करें। अब बात करते हैं कोरोना की। तो मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के वार ना थम सके, मजीद 22 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई, जबकि 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 5126 टेस्ट किए गए, जिनमें से 22 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.43% रही, जबकि 2 मरीज मौत के मुंह में भी चले गए हैं। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अभी भी 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लकी मरवत के मोहल्ला मचन खेल में पुलिस एहलकार के घर पर दस्ती बम हमला और फायरिंग। नामालूम हमला और पुलिस एहलकार नवाब खान के घर पर दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। बम हमले और फायरिंग से इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि हमले में घर वाले महफूज रहे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शरीफुल्लाह से। जी शरीफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लकी मरवत में मोहल्ला मचन खेल में नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकार नवाब खान के घर पर दस्ती बम हमला और फायरिंग की है। नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक बम हमला और फायरिंग से इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि घर वाले महफूज रहे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक दूसरे वाक़े में यूनिवर्सिटी ऑफ
लकी मरवत के जेर तामीर इमारत पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने दावा बोल दिया है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड के मजम्मत पर फायरिंग की है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड सरदराज जख्मी हो गए। नामालूम मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी गार्ड से असला छीन कर साथ ले गए हैं। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े के बाद पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई है। जी शुक्रिया शरीफुल्लाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ANF का मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ANF की बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पर फ्लाइट नंबर PA 601 दोहा जाने वाले मुलजिम के पेट से 100 चर्स भरे कैप्सूल पर आमद करके सवात का रहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। कारखानों मार्केट के करीब कार्रवाई करते हुए खैबर के रहायशी मुलजिम से 1 किलो 800 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। कराची DHA के करीब घोटकी के रहायशी मुलजिम से मजमूई तौर पर मुख्तलिफ इकसाम की 137 शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमात के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने शाइस्ता खोसा एडवोकेट गरीदा फारूकी ने पीपल्स पार्टी दुबई के सदर मियां मुनीर की जानिब से मुनक्किदा ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से एक इजलास में शिरकत की। इस मौका पर वफाकी वजीर मुमलिकत सरदार सलीम हैदर खान के दुबई में फोकल पर्सन बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सरदार कैसर खान हयात और दीगर भी मौजूद थे। सैयद हसन मुर्तजा ने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उस मुल्क जिद्दा जिथे लोगों को टाइम भी कोई नहीं, हर आदमी अपने काम में फंसा हुआ है, बिजनेसमैन है, कोई लेबर है, उन्होंने मसरूफियात ने सारे दोस्तों ने टाइम कढ़िया भी बड़ी साढ़े लिए ऑनर की गल है। और जो इज्जत दी जो थोड़े को प्यार मिलया उनके भी कोई शक नहीं। सारे दोस्तों ने काफ़ी सारिया चीज़ों की निशानदेही भी की। मैं समझना बड़ा पॉजिटिव साइन है कि तुसी सारे दोस्त मुल्क तो दूर रह के भी उस मुल्क के नाल तुहाडी एफिलिएशन इस हद तक है कि छोटिया छोटिया चीज़ां भी तुसी ज़हन में रखते हो कि साडे मुल्क भी होनी चाहिए। और असीं भी उन्होंने कमी फील करने कभी भी ये नहीं आख्या कि बड़े आइडियल हालात ने उत्थे। इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ रैली सादिकाबाद। इमरान खान की हिदायत पर PTI कारकुनों की मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ और रैली सादिकाबाद रैली गोसिया चौक से रेलवे चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत रहनुमा PTI सजाद अहमद वराइश ने की। रैली में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, तमाम मुक्तबा अफाकिर के लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरका का मुल्क में 4 इलेक्शन करवाने का मुतालबा। सीनियर रहनुमा अहमद वजीर गुल, इम्पोर्टेड हुकूमत की गलत पॉलिसी से मुल्क दिवालिया होने पर पहुंच गया। अहमद वजीर गुल, इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई का पहाड़ खड़ा कर दिया और 2 वक्त की रोटी का हसूल भी नामुमकिन हो गया। ज़िला पुलिस फैसलाबाद की जानिब से सब इंस्पेक्टर एजाज मकबूल शहीद की 4थी बरसी मनाई गई। इस मौका पर SHO थाना मिल्लत टाउन राना मगफूर ने पुलिस दस्ते के हमरा शहीद की कब्र पर सलामी दी और फूल भी चढ़ाए। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी बिल्कुल, महकमा पुलिस की जानब से कतन भी अपने शोहदा को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। उसके साथ साथ महकमा की जानब से जो उनके शोहदा हैं उनको अपने माथे का झूमर भी समझा जा रहा है। एजाज मकबूल सब इंस्पेक्टर जो फैसलाबाद में एक मुकाबले में शहीद हुए, आज उनकी 4थी बरसी मनाई गई है। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं SHO मिल्लत टाउन राना मगफूर अहमद। हम उनसे मजीद जानने की भी कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा, बड़ा अच्छा इकदाम उठाया आपने, जो आप अपने शोहदा हैं उनको आप नज़रअंदाज नहीं करते और उनके बच्चों की कफालत भी करते हैं। आज आप उनकी कब्र पर भी तशरीफ लेकर गए, मजीद क्या कहेंगे इसी हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। पुलिस में जितने भी शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से हम इस मुआशरे में इन लोगों में इज़्ज़त से सर उठा के चल सकते हैं। उनकी ये कुर्बानियों का नेमुल बदल तो नहीं है, लेकिन ये बहुत हकीर सा उसके बदले में एक नजराना है कि हम उनके बच्चों की, उनके अहलो याल की कफालत करें। वो इसी तरह हमारे फैमिली मेम्बर हैं, जैसे मेरी अपनी फैमिली, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, RPO साहब, CPO साहब, SP साहब मदीना टाउन, DSP साहब, वो कभी भी उनको एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं करते। हम उनके लिए 24/7 हमेशा हाजिर हैं। उनके किसी भी काम के लिए हम ऐसे ही तकलीफ़ उठाते हैं, ऐसे ही पेन लेते हैं जैसे हम अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए उठाते हैं।
ان کی اس قربانی کو اس کا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نعم البدل ہے اس کا، یہ تو بالکل ایک حقیر سا نذرانہ ہے ان کے لیے کہ ہم ان کے بچوں کو یہ احساس دلا سکیں کہ وہ لاوارث نہیں ہوئے، وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہیں اور ہمارے سینئر افسران کا ہر وقت دست شفقت ان کے سر پہ ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم نے سنا ایس ایچ او ملر ٹاؤن رانا مغفور احمد کا یہ کہنا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی قربانی کو بالکل بھی رائگاں نہیں جاتی۔ یہاں پر سعودی دارالحکومت ریاض میں ماہر آرٹسٹ محمد العمار نے کثیر المنزلہ عمارت کی 120 میٹر اونچی دیوار پر سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود کا شاندار پورٹریٹ بنایا، جسے بنانے میں انہیں 50 روز لگے۔ سعودی عرب کے بانی کا پورٹریٹ ملکی اور غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور وہ آرٹسٹ کی تخلیق کو خوب سراہ رہے ہیں، جبکہ آرٹسٹ محمد العمار کا کہنا ہے کہ وہ کنگ عبدالعزیز وال پورٹریٹ کے ذریعے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2022-23 کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے 38ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 4 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 3 ارب 86 کروڑ 16 لاکھ 54 ہزار روپے کی منظوری دے دی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر واصف خورشید نے کی۔ صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی، ان میں ٹوبہ ٹیکسنگ کمالیہ میں جوڈیشنل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 48 کروڑ 33 لاکھ 30 ہزار روپے، راولپنڈی میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کی پارکنگ کے لیے، اپروچ روڈ اور پل کی تعمیر کے لیے 1 ارب 31 کروڑ 45 لاکھ 95 ہزار روپے، غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پائیدار زمین کی ترقی کے کام کے لیے پرانے بلڈوزر کی بحالی کے لیے 1 ارب 50 کروڑ 55 لاکھ 61 ہزار روپے اور کینال کالونی سلیمان کی بیران میں رہائش گاہوں اور متعلقہ ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے 55 کروڑ 81 لاکھ 68 ہزار روپے شامل ہے۔ اجلاس میں صوبائی سیکٹر پی این ڈی بورڈز ڈاکٹر سہیل انور چودھری سمیت صوبائی محکمہ جات کے اعلیٰ افسران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران نے شرکت کی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ دھند کا راج برقرار ہے۔ شہر میں دھند کے باعث ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ دھند کے باعث بند ہونے والی موٹر ویز کو حد نگاہ میں بہتری کے بعد ٹریفک کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے جنید اشرف سے، جو اس وقت مال روڈ پر موجود ہیں۔ جی جنید، کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور شہر کے موسم کی بات کریں تو آج بھی دھند کا راج ہے۔ دھند کے باعث ہم نے دیکھا رات گئے تک جو ہے موٹر ویز کو بند کیا گیا تھا اور صبح کے اوقات میں جیسے ہی حد نگاہ میں بہتری آ رہی ہے موٹر ویز کو کھولا جا رہا ہے۔ موٹر وے M2 M3 اور M11 کو رات گئے بند کیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر قبل ہی جو ہے موٹر ویز کو کھلنے کا کام شروع ہو گیا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ حد نگاہ جو ہے ایئرپورٹ پر بھی کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور 50 میٹر تک رہ گئی تھی، چونکہ اب جو ہے دن کے اوقات میں جو ہے اب حد نگاہ میں بہتری آ رہی ہے اور فلائٹ آپریشن بھی بحال کیا جا رہا ہے۔ اور دھند کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ فلائٹ آپریشن بھی شدید حد تک متاثر تھا، نظام زندگی لاہور میں کافی حد تک متاثر تھا۔ اگر شہر کی درجہ حرارت کے حوالے سے بات کروں تو شہر کا کم سے کم درجہ حرارت آج 4 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تاہم شام کے اوقات میں پھر سے ہم دیکھیں گے کہ دھند کا پھر سے راج برقرار ہو جائے گا۔ ابھی بھی شہر کے متعدد علاقوں میں جو ہے دھند قائم ہے اور دھند کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں ٹریفک کی روانی جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پولیس اہلکار یہی کہہ رہے ہیں ترجمان کہ ٹریفک کو چاہیے کہ وہ فوگ لائٹس کا استعمال کرے، گاڑیوں کی بیک اور فرنٹ جگہ پہ جو ہے فوگ لائٹس ہوگی تو پھر ہی ہم دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی۔ دوسری جانب سردی کی شدت کے باعث جو ہے بزرگ اور بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر میں ہی رہیں، کیونکہ گھر میں رہیں گے سیف رہیں گے اور باہر جو ہے سردی کی شدت زیادہ ہے۔ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان کی زیر صدارت آئی ٹی پروجیکٹس بارے سینٹرل پولیس آفس میں اجلاس۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ آئی ٹی کے بھرپور استعمال اور توجہ سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ شہریوں کو اپنے کاموں کے لیے بار بار دفتر کے چکر نہ لگانا پڑے۔ صوبہ بھر میں 129 خدمت مراکز، 171 خدمت کاؤنٹرز اور 37 پولیس خدمت وینز شہریوں کو خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ خدمت مرکز گلوبل پورٹل اوورسیز پاکستانیوں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ، نیشنل سٹیٹس ویریفیکیشن سمیت دیگر سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ عامر ذوالفقار نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے لیے لانچ کی گئی مختلف سروسز کے حامل پنجاب پولیس کی تمام اپلیکیشنز کو ایک ایپ میں یکجا کیا جائے۔ جرائم کنٹرول کے ساتھ ساتھ شہریوں کے مسائل کے آسان حل منجمد ٹیکنالوجی کے
इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें डकैती की वारदात करने वाले डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। हलाक होने वाले डाकू सिटी डिवीजन के दीगर थानों की हदूद में वारदात कर चुका था। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? देखें, ये शफीकाबाद का इलाका है। आजादी और हाइब्रिड जो है वो वहाँ पे डकैती की वारदात करने वाले दो डाकू थे जो शहरी के साथ लूट मार कर रहे थे। जिस तरह से आजादी फ्लाईओवर की बात की जाए तो अमूमन वहाँ पर जिस तरह से शाम होते ही जो है वो दूध के डेरे डर जाते हैं, तो वहीं पर डाकुओं को भी जो है वो वारदात करने का बड़ा खूबसूरत और सुनहरी मौका मिल जाता है, क्योंकि इर्द गिर्द लोग नहीं होते। तो उसी पर ये डाकू वारदात कर रहे थे कि वहां से जो है वो दूसरी जानिब से पुलिस पार्टी आ गई और पुलिस पार्टी को देख के डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग के नतीजे में अगर देखा जाए तो अपने ही साथी की फायरिंग से जो है वो एक डाकू हलाक हो गया, जिसका नाम सजाद है। और सजाद के हवाले से मैं बताता चलूं कि ये जो है वो सिटी डिवीजन में तकरीबन 50 से ज्यादा वारदातें कर चुका है। इसका काम यही है कि शाम के वक्त ये अपने साथियों के साथ निकलता था। शफीकाबाद, लारी अड्डा, बदामी बाग, मिसरी शाह, शादबाग, शादरा टाउन, शादरा, खासकर इस्लामपुरा और लिटन रोड के इलाके में ये वारदात करता था। सीआरओ के मुताबिक जो है वो इसका डाटा जो निकाला गया है, ओल्ड नारकली और न्यू नारकली के इलाके में ये डकैती की वारदातें करता था। जिस पर पुलिस ने जिसको गिरफ्तार करने की जब कोशिश की तो इसने पुलिस पार्टी पर पहले फायरिंग की, लेकिन वहां से जो है वो आपस में दोनों जो डाकू थे भगदड़ मच गई और फरार होना शुरू हो गए। जब ये एक दूसरे को फायरिंग कर रहे थे पुलिस के ऊपर, तो अपने ही साथी की फायरिंग से जो है वो एक सजाद नामी डाकू मौका पे हलाक हो गया, जिसकी डेड बॉडी को एसएचओ शफीकाबाद की जानिब से, इंचार्ज शफीकाबाद की जानिब से डेड हाउस पहुंचाया गया, जहां पर उसका कुछ ही देर में पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए डाकू की बात तो जो है वो जिस तरह से मैंने बताया कि रात होते ही जो है वो धुंध तेज हो जाती है और डाकू भी अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं और असला के जोर पर लोगों के साथ डकैती की वारदात करते हैं। तो सजाद भी अपने साथी के साथ रोजाना रूटीन के मुताबिक डकैती की वारदात करता था। तकरीबन ये 50 से ज्यादा मुकदमात में जो है वो पुलिस को मतलूब भी था। इसके ऊपर पहले भी मुकदमात दर्ज थे और आज ये इसी तरह से ओवर ब्रिज पर जब वारदात करने के लिए आया तो आजादी फ्लाईओवर के ऊपर ही पुलिस पार्टी के साथ इसका आमना सामना होगा। ये अपने साथी की फायरिंग से जो है वो मारा गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वजीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत की जेर सदारत अमूर कानून साज कमेटी का इजलास में वजीर कानून खुरम शहजाद विर्क, सेक्रेटरी कानून अख्तर जावेद, सेक्रेटरी जंगलात शाहिद जमान की शिरकत। इजलास में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी के सर्विस रोल्स में तरमीम करके बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सुप्रिटेंडेंट को 17वां और असिस्टेंट को 16वां स्केल देने की मंजूरी दे दी गई। कबीना कमेटी ने महकमा दाखिला के पेरोल बोर्ड की असर नो मंजूरी देते हुए इसे मुतहरिक करने का फैसला किया है। चेयरमैन कमेटी राजा बिशारत की सूबाई पेरोल बोर्ड की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत देते हुए कहना था कि पंजाब के 43 जेलों में दोबारा पेरोल सर्वे कराया जाएगा। मुकर्ररा हद तक सजा काटने और अच्छे कुंडट वालों को पेरोल पर रहाई मिलनी चाहिए। सिर्फ बाअसर अफराद को पेरोल पर रहाई की कानूनी सहूलत से फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। इजलास में चंकारा, हिरन, नीलगाय और अरिया को पहले शेड्यूल में शामिल करने की मंजूरी भी दी गई। जंगली सीवर को शिकार के 4th शेड्यूल से पहले शेड्यूल में मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया, जबकि शिकार पर मिट के अजरा की फीस में तब्दीली और 29 परिंदों को 3rd शेड्यूल में डालने की मंजूरी भी दे दी गई। कबीना कमेटी ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। इजलास में रीगेट फॉरेस्ट एंड एको आपको बताएं कि इजलास में इरिगेटेड फॉरेस्ट एंड इको टूरिज्म बिल और एको कल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल की मंजूरी के साथ साथ नए कायम होने वाले खानपुर कैडेट कॉलेज रहीम यार खान को फाल करने की मंजूरी भी दे दी गई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के कंट्री नुमाइंदा डॉक्टर लुए शनैबे ने मुलाकात की। पॉपुलेशन वेलफेयर खसूसन फैमिली प्लानिंग के लिए बाहमी इश्तराक को मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर की मंजूर शुदा खाली असामियों पर भर्ती का ऐलान करते हुए कहना था कि महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मरतूब और मुश्तरका काविशों के जरिए ही फैमिली प्लानिंग के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। देहात के साथ साथ शहरों के पसमानदा इलाकों में भी लोगों को फैमिली प्लानिंग की अहमियत से रोशनास कराया जाएगा, जबकि फैमिली
हेल्थ क्लिनिक्स और फलाही मराकिज को मजीद फ़ाल किया जाएगा और फैमिली प्लानिंग के इक़दाम की तहसील और ज़िला की सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत ने फैमिली प्लानिंग इख्तियार करने वाले खानदानों को खसूसी पैकेज देने का फैसला किया है। खसूसी पैकेज पंजाब एहसास प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। आबादी के साथ तेजी से बढ़ते मसाइल कुर्राए अर्ज पर इंसानी बका के लिए खतरा है। आबादी में बेहंगम इजाफा सेहत, तालीम और रोजगार के मसाइल को तरवीज देता है। आबादी से मुतल्लिका मसाइल पर काबू पाने के लिए हुकूमती काविशों के साथ अवाम का ताउन भी नागुज़ीर है। आबादी पर काबू पाकर अवाम के मयार जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि समाज में बहबूद आबादी का शऊर बेदार करना मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है। इस मौके पर डॉक्टर लोए शबाना का कहना था कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में पंजाब हुकूमत पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए मिसाली इक़दाम कर रही है। हमें खुशी है कि वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स के हौसला अफजाई नताइज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर लोए शबाना ने कहा कि पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से पंजाब हुकूमत के साथ करीबी इश्तराक से मजीद काम जारी रखेंगे। आपको बताएं कि कराची टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 449 रन बनाए थे। इमामुल हक और साउथ शकील ने 3 विकेट के नुकसान पर 154 रन से आज के दिन का खेल का आगाज किया, जिसके बाद 182 रन पर पाकिस्तान की चौथी विकेट गिर गई। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टीम सऊदी ने इमामुल हक को 83 रन पर कैच आउट कराया। गुज़िश्ता रोज अब्दुल्ला शफीक 19, शान मसूद 20 और बाबर आजम 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।